احمد رضا، یہ بتائیے گا کہ مطلب آج کل ہمارے ملک میں تو یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ہماری آئینی عدالت میں ترامیم کی جائیں، ایسا ہو اور وہ سارے معاملات کے ملک کا جو آئین ہے وہ بہتر ہو، لیکن آپ کی نظر میں اگر میں یہ پوچھوں کہ آئینی عدالت جو ہے اس کے معاملات زیادہ ہیں یا ہماری جو ایتھیکل کورٹ ہے اس کی ضرورت ہمیں زیادہ ہے اس معاشرے میں؟ جی، یہ ایسے موضوعات ہیں جو ہمارے معاشرے میں اس وقت ٹوٹلی ناپید ہو چکے ہیں۔ اگر ہم اپنے ایجوکیشن سیکٹر کو دیکھیں، اگر ہم اپنے سیاستدانوں کو دیکھیں، اگر ہم اپنے تمام سوسائٹی کو دیکھیں تو ہم اخلاقی طور پر ایک عاری قوم ہو چکے ہیں۔ ہم اخلاقیات میں بہت حد تک گر چکے ہیں۔ تو اگر ہماری تعلیمی محور کو دیکھا جائے یا تعلیمی پرپس کو دیکھا جائے اور ہم دیکھیں کہ ہماری تعلیمی مقاصد کیا ہیں، تو اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ سکھایا گیا کہ جس کا اخلاق اچھا ہے اس کے باقی تمام معاملات ہیں، اور کہا گیا کہ اگر کسی انسان کو آپ نے اس کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، اس کے ساتھ لین دین کرنا ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی ایسا عمل آپ نے انجام دینا ہے، تو سب سے پہلے دیکھو کہ اس کے لوگوں کے ساتھ اخلاقیات کیسے ہیں۔ اگر تو آپ کے اخلاقیات اچھے نہیں ہیں تو آپ چاہے وہ سیاست کا میدان ہے، چاہے وہ تعلیم کا میدان ہے، چاہے وہ کسی بھی پریکٹیکل میدان میں آپ ہو، تو اگر آپ کے اخلاقیات اچھے نہیں ہیں تو آپ کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی روح کی خوبصورتی ہے، اور جس انسان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہوتے ہیں، جتنے معاشرہ جڑا ہوتا ہے، وہ خود بخود اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر معاشرے میں اخلاق نہیں ہے تو میرے خیال میں وہ معاشرہ زندہ لاش ہے۔ بالکل۔ اچھا، ابھی ایران نے بھی ریسنٹلی ایتھیکل کورٹس پر بات کی ہے، اور انہوں نے ایسی کورٹس بھی بنائیں اخلاقی اس کو اقدار کو بہتر کرنے کے لیے، اخلاقی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن وہ کسی اور طرف چلے گئے اور تھوڑا سا وہ سکسیسفل نہیں ہوا۔ لیکن اگر ہم پاکستان میں ایسی عدالتوں کا قیام مقرر کر لیں، ایسی پولیس فورس کا جو ہے ایک پورا دستہ جیسا ہم کہہ سکتے ہیں، ایک ایسا اسٹیشن بنا دیا جائے جیسا ہمارے آئینی معاملات کے لیے تو پولیس اسٹیشنز موجود ہیں، لیکن کوئی ایسی پولیس، کوئی ایسی فورس ہو جو ہمارے اخلاقی جو مسائل ہیں اس کو بہتر کر سکے۔ فار ایگزامپل، اگر محلے میں جو ہے ایک عام لڑائی ہو جاتی ہے خواتین کی بھی اسپیسیفکلی، تو اس میں یہ ہے کہ خواتین تو بہت زیادہ قابل احترام ہے، وہ کیا پولیس اسٹیشنز کے دھکے کھائیں گی، وہاں ایک ایسی جگہ پہ جانا بھی ان کے لیے ذرا بہتر نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے بہتر نہیں ہے کہ کوئی ایسی ٹاسک فورس ہو، کوئی ایسی پولیس ہو جو خود اس ایرا میں جا کر دونوں جو فریقین ہیں ان کے درمیان جو ہے معاملات حل کرا دے، صلح کروا دے۔ پھر کچھ اس طرح کہ اگر ہم ان پہ ایسے کہہ دیں کہ جرمانہ جو ایک اسپیسیفک عائد کر دیں، جس کی بھی غلطی ہے، جو بھی مجرم ہو اس پہ وہ اسپیسیفک جو ہے اماؤنٹ اس کو پے کرنی پڑ جائے، اور خواتین جو ہیں وہ اتنی قابل احترام ہیں، وہ پھر پولیس اسٹیشن کے دھکے کھانے کے بجائے وہ سارے معاملات اس طرح سے حل کیے جا سکیں۔ جی، زبردست قسم کا یہ آپ کا جو سوال ہے، تو میں اس پر یہ کہوں گا کہ اس وقت ہمارے معاشرے کو اسکل سے زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے، وہ ہے سافٹ اسکل کی۔ اور وہ کون سی ٹریننگ ہے؟ ہمیں لوگ آ کے بتائیں کہ ویلیوز کیا ہوتی ہیں، ہمیں لوگ آ کے سکھائیں کہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا کرنا ہوتا ہے، ہمیں لوگ کو آ کے بتایا جائے، سکھایا جائے کہ جب آپ نے لوگوں سے ڈیل کرنا ہے تو کس طرح ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنی ہیں، ان کے مسائل حل کرنے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس، میں مانتا ہوں کہ ہمارے پاس اسکل والے لوگ موجود ہیں، ہائیلی اسکل پرسن موجود ہیں، لیکن اگر ایک چیز جو لیک کر رہی ہے وہ ٹریننگ ہے۔ وہ کس چیز کی ٹریننگ ہے؟ کہ ہمارے اندر جو سافٹ اسکل کی ٹریننگ ہے۔ ہم لوگوں کو ڈیل کرنا نہیں جانتے، ہم لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا جانتے۔ بہت سے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر اچھے طریقے سے ہم بات کریں، بہت سے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر ہم مسکرا کے اس کے مسئلے کو سن لیں۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہم جس ڈپارٹمنٹ کو بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں وہاں کے لوگوں کی ٹریننگ ہونی چاہیے، اور ٹریننگ میں ان کا مائنڈ سیٹ بدلنا چاہیے، اور ان کے مائنڈ سیٹ میں یہ بات ڈالنی چاہیے کہ یہاں عہدہ جو ہے یہ عارضی ہے، لیکن جو آپ لوگوں کے ساتھ تعلق بناؤ گے، جو لوگوں کے مسائل حل کرو گے، وہ لانگ لاسٹنگ ہے، اور وہی اصل میں آپ کی ویلیو ہے، وہی اصل میں آپ کی پرسنالٹی ہے۔ تو جب تک آپ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کریں گے، لوگوں کے مائنڈ سیٹ نہیں بدلیں گے، اور کچھ ایسی پالیسی نہیں بنائیں گے جس میں انہیں ہمیں بتایا جائے، انہیں سکھایا جائے کہ ڈیلنگ کیا ہوتی ہے، انہیں سکھایا جائے کہ اصل آپ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ احمد رضا، میں یہاں پہ یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اب ہم لوگ جہاں ایڈوانس ٹیکنالوجی کی طرف چلے جا رہے ہیں وہاں یہ اقتدار ہماری کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر ہم پچھلا ایرا اٹھا کے دیکھیں جو ہمارے بزرگ ہوتے تھے، اگر وہ جس طرح محلے میں بھی لڑائی ہو جاتی تھی تو وہاں کے بڑے ہی اس چیز کو سلجھا دیتے تھے اور مسائل بگڑتے ہی نہیں تھے، یا معاملے کو رفع دفع کرنے کی بات ہو رہی ہوتی تھی کہ کوئی بات نہیں، صبر کر لو، یا معافی تلافی کر لو، یا ایک جیسا آپ نے کمیونیکیشن کی بات کی، اس ٹائم انداز گفتگو بھی مختلف ہوا کرتا تھا اور لوگوں کے باتوں کو
को इंपॉर्टेंस भी दी जा रही होती थी और मामलात इस तरह से नहीं बिगड़ते थे, क्योंकि हर शख्स की तरबियत में ये चीज़ शामिल हुआ करती थी कि हमने किस तरह से आगे रिएक्ट करना है। हमें तो स्पेसिफिक ये सिखाया जा रहा होता था कि अगर कोई बड़ा कोई बात कर देता है, और वो बड़ा सिर्फ घर का नहीं है, वो आपके मोहल्ले का बड़ा भी हो सकता है, वो आपके इलाके का हो सकता है जहाँ पे आप रहते हैं, तो वो उसको एक तो उसका एहतराम इतना ज़्यादा होता था, उसके साथ साथ उसकी इज्जत, उसका वकार, उस सब चीज़ों पे बच्चों को तो ये इजाज़त ही नहीं होती थी कि वो उस चीज़ को जवाब दे सकें, या एक एहतराम होता था। अगर हम अब देखें तो वो एहतराम भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया हुआ है। अब जो है हम पेरेंट्स भी ये कह रहे होते हैं कि अच्छा उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को ये कहने की, और वो चीज़ हम बच्चों के सामने कर रहे होते हैं, तो फिर बच्चों में भी ये चीज़ नहीं आती। जैसे आपने ट्रेनिंग की बात की, तो ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है, और सबसे पहले ट्रेनिंग आपको अपने घर से मिलती है, अपनी जो आप जिस जगह पे रह रहे होते हैं, मोहल्ले में रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, जिस सोसाइटी के आप मेंबर हैं, वहाँ से आपको ट्रेनिंग मिल रही होती है आपके घर के बाद, और फिर स्कूल में। तो ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? जैसे एथिकल कोड्स की, एथिकल टास्क फोर्स की हम लोगों ने बात की है, वो तो एक बुनियादी चीज़ है, उस पर हम काम करें, उसको इम्प्लीमेंट करें। तो अगर इस तरह होगा, बहुत सारे मसाइल तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले ट्रेनिंग किस तरह से की जाए, इस पर थोड़ी सी बात कीजिएगा। अच्छा, जब आपने बात की इक़दार की, तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी माशरे में इक़दार जिंदा है तो वो माशरा जिंदा है, और जिस माशरे में वैल्यूज मर चुकी हैं, असल में वो मुर्दा माशरा है और हम उसे जिंदा समझ रहे हैं। अगर आज के इरा की बात करें, जहाँ टेक्नोलॉजी, जहाँ इंसान की जिंदगी बड़ी कंफर्ट जोन में आ गई है, इंसान ने आसमानों को जो है तय कर लिया है, लेकिन वहाँ मेरा ये मानना है कि वहाँ इंसान ने बहुत सी पेचीदगियाँ भी अपने अंदर पैदा कर ली हैं, जिसमें पेचीदगियों में ये है कि वहाँ वैल्यूज खत्म होना शुरू हो गई हैं, लोगों को आपस में मिलना खत्म हो गया, लोगों को एक दूसरे के लिए टाइम देना मुश्किल हो गया। तो वहाँ जहाँ बहुत ज्यादा जिंदगी में आसानियां आई हैं, वहाँ बेशुमार मसाइल भी हमने क्रिएट किए, और सबसे बड़ा मसला मुझे जो लगता है कि वैल्यूज हमारी माशरे में पहले से कम हुई हैं। अगर 10 साल पहले वाली जिंदगी देखें तो वहाँ आप देखेंगे वैल्यूज ज्यादा हैं, लोग कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे मामलात हैं। लेकिन आज की निस्बत देखें, लोगों की जिंदगी में इतनी स्पीड है, इतनी तेजी है कि लोगों के पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, एक दूसरे के मसाइल सुनने के लिए टाइम नहीं है। तो उसका तरीक़ेकार क्या है कि अभी दोबारा हमें, मुझे लगता है कि हमें दोबारा उस एरा में जाना पड़ेगा, और वो वैल्यूज दोबारा क्रिएट करनी पड़ेगी। उसका सबसे पहला आगाज हमें अपने घर से करना पड़ेगा, जैसे आपने अपने सवाल में बताया, और वो घर में उसकी मदर है, माँ से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, माँ की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, माँ का माइंडसेट हमें बदलना पड़ेगा। माँ के बाद हमने क्या दूसरा सेक्टर है एजुकेशन, क्योंकि वहां से ही हमारी बेस बन रही है, वहां से ही हमारी फाउंडेशन बन रही है। तो उसके बाद हमें एजुकेशन सेक्टर में काम करना पड़ेगा, हमें अपने टीचर्स पे काम करना पड़ेगा, और उसके बाद आता है एक सोसाइटी, माशरा। जब ये तीनों मिल के काम करेंगे तो एक ऐसा इंसान डेवलप होगा जो वैल्यू वाला पर्सन होगा, जिसके अंदर वही इक़दार होंगी जो एक इंसान के लिए जरूरी है, या एक माशरे के लिए जरूरी है, या एक माशरे में सर्वाइव करने के लिए जरूरी है। तो हमें दोबारा से, मुझे लगता है कि हमें दोबारा से वही इक़दार की तरफ जाना पड़ेगा, दोबारा से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और वो दोबारा से माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा जो इक़दार वाला है, जिससे माशरे जिंदा होते हैं। सर ये भी चीज़ है ना कि अगर जैसे हम ट्रेनिंग की बात करें, एजुकेशन की, बच्चों को ट्रेन करें, हमारे यहाँ लिसनिंग प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है। हम अव्वल तो दूसरे बंदे की बात पूरी ही नहीं सुनते हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है हमारे पास। कम्युनिकेशन जो है एक की है जिसके थ्रू आप जो है अपनी बात दूसरे इंसान को पहुँचा सकते हैं। पहले होता था बहुत शाइस्तगी से बात होती थी, बड़ी नर्म मजाजी के साथ बात हो रही होती थी, अगर आपने किसी की इस्लाह करनी होती थी तो भी वो बड़ा एहतरामन उसको किया जा रहा होता था। लेकिन अब हम दूसरों पर चढ़ दौड़ते हैं, असल बहुत ज़्यादा लड़ाई भी ये स्टार्ट हो रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो एक जो है बंदा, उसका जो नज़रिया है, उसकी आइडियोलॉजी अलग है, दूसरे पर्सन की डिफरेंट है, वो दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, तो हमने तो ये भी पेशेंस ख़त्म हो गया है कि हम एक दूसरे के नज़रियों की भी कदर करें, एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, अगर एक इंसान ये कह रहा है कि वो इस लीडर के साथ है, या उसको उसकी ये वाली एबिलिटीज़ या ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये उनकी खिदमात जो उन्होंने कौम के लिए की हैं, वो बेहतर है, और दूसरा कह रहा है वो, लेकिन हम देखते हैं कि अक्सर केसेस भी इस पर रिपोर्ट हो रहे होते हैं बिकॉज आप लोगों की वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपने एक दूसरे की बात को ना सुना ना समझा, और दो ऐसे लोगों की वजह से आप आपस में झगड़ने पे जो है वो तुल जाते हैं, और फिर इस पर भी केसेस चल रहे होते हैं क्या, और बाज़ औक़ात तो इतने सीवियर केसेस हो जाते हैं कि गोलियां चल जाती हैं, लोगों की इस पर डेथ भी होती है। ये हम अपनी रोज़मर्रा रूटीन में न्यूज़ में हम दे भी रहे होते हैं ये सारे मामलात जो हैं। तो कम्युनिकेशन कितना मैटर करती है सोसाइटी के लिए स्पेसिफिकली, कि हम अपनी कम्युनिकेशंस की जो
एबिलिटीज़ हैं उसको बेहतर बनाएं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करें। और अगर एक इंसान जो है वो शाउट कर रहा है तो दूसरा किस तरह से रिएक्ट करे? अच्छा, इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि जब हम बात करते हैं पेशेंस की, जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, और जब हम बात करते हैं इस माशरे में अदम जो है बर्दाश्त का पहलू उजागर हो चुका है, तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या पेशेंस एक सीड तो नहीं है जो हमने परवान चढ़ाना है। असल में पेशेंस एक सीड की मानद हमारे अंदर है। अल्लाह ताला ने एक स्किल रखी होती है जिसको हमने प्रैक्टिस के ज़रिए उसके ऊपर काम करके और उसके ऊपर हमने बार बार उसकी मशक करके उसको एक तनावर दरख्त में कन्वर्ट करना होता है। इसी तरह जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन भी एक सीड है हमारे अंदर, यानी एक स्किल है। उस स्किल को पॉलिश करना पड़ता है, उस स्किल पे काम करना पड़ता है, उसको टाइम देना पड़ता है, उस पे ऊपर एफर्ट करना पड़ता है, फिर वो स्किल आपके अंदर उजागर होती है। तो ये जितनी भी सॉफ्ट स्किल हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन है, चाहे वो पेशेंस की है, चाहे वो आपने लोगों के साथ डील करना है, ये सारी की सारी आपके अंदर सीड की मानद है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें, आपके अंदर लिसनिंग पावर अच्छी हो, आप लोगों की बात तहम्मुल से सुन सकें, आपके अंदर इतना जो पोटेंशियल हो, आप लोगों को बड़े आसानी से बर्दाश्त कर सकें, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और अपने ऊपर काम करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को देखें, ऑब्जर्व करें। जो लोग अब इस लाइफ में दौड़ रहे हैं और इतनी स्पीड से दौड़ रहे हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास ज़िंदगी में दोबारा अपनी लाइफ को रिव्यू करने का टाइम नहीं है, उनके पास मैंने ऑब्जर्व किया है कि ज़्यादा जो है पेशेंस नहीं होता, उनके पास लैक ऑफ कम्युनिकेशन होती है। वो जब तक आप जिंदगी में एक दफा ब्रेक नहीं लेंगे, ठहराव नहीं लाएंगे और रुकेंगे नहीं और अपने आप को असेस नहीं करेंगे कि मेरे अंदर लैक क्या कर रहा है, तो फिर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते। अच्छा अहमद, हमारे यहाँ ये भी मसला है, हमें तो अभी तक ट्रैफिक रूल्स भी नहीं पता, हमें तो वो फॉलो करने नहीं आते हैं। हम अपने बच्चों को एक पॉइंट तो सिखा देते हैं, एक चैप्टर पढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद क्या है, कोई इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। अगर आप देखें हॉर्न की अगर मैं बात करूं तो नॉइज पोल्यूशन में इतना अहम किरदार अदा कर रहा है ना हॉर्न। और जब मैं अपनी जो है ट्रेनिंग ले रही थी ड्राइविंग क्लास में, तो हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स थे उन्होंने हमें स्पेसिफिकली ये चीज़ सिखाई भी कि हमारे कौन कौन से हमारे फ़राइज़ हैं, हमें किस तरह से अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो हमें अपनी सड़क पर चलना कैसे है, लेन का फ़र्क उन्होंने समझाया, लाइन का फ़र्क समझाया, एंड बहुत सारी चीज़ें हमें समझाई पढ़ाई। इसके साथ साथ वो हमेशा एक बात करते थे कि हॉर्न जो है वो गाली है। और अगर हम देखें तो बाज़ औक़ात हम इतने इम्पेशेंस हो जाते हैं कि हॉर्न पे हाथ लग के कंटिन्यूसली वो चल रहा है और इसकी वजह से कितनी डिस्टर्बेंस हो रही है कि हम तहम्मुल का मुजाहिरा भी नहीं कर पा रहे होते। और इसके साथ साथ अगर ख़वातीन ड्राइविंग कर रही हैं और अगर वो स्टक हो गई हैं, फॉर एग्जांपल, क्योंकि ख़वातीन को यही समझा जाता है कि वो तो अनाड़ी हैं, उनको तो ड्राइव ही नहीं करना आता, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। और अगर इन केस वो किसी इशू की वजह से, गाड़ी की कोई ख़राबी की वजह से वो हो जाता है, तो पीछे से हॉर्न दे दे के उसका जो कॉन्फिडेंस है उसको और ज़्यादा कम कर रहे होते हैं। तो इसमें ये देखना पड़ेगा, बात हमने जब अपने माशरे को इस तरह ऑब्जर्व करते हैं तो ये कहते हैं अफात की जद में माशरा जब आ जाता है, यानी जब हम ऑब्जर्व करते हैं दाएं बाएं हमें नेगेटिविटी नज़र आती है, हमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम नज़र आते हैं, हमें मसाइल ही मसाइल नज़र आते हैं, हमें लग रहा होता है कि हर कोई डेली बेसिस पे दाएं बाएं ऑब्जर्व करते हैं तो वो लॉ को वायलेट कर रहा होता है, वो कानून की पासदारी नहीं कर रहा होता। तो इसकी ट्रेनिंग कहाँ से स्टार्ट करें? तो मैं ये कहता हूँ कि इसकी ट्रेनिंग का आगाज पहले स्टेप से घर से करें, और जैसे ही बच्चा स्कूल ऑन गोइंग हो उससे पहले दिन से ही उसके सबकॉन्शियस के अंदर ये चीजें प्रिंट हो जानी चाहिए। चीजें हो गई कि हमने कर लिया कि हम ट्रेनिंग अपने घर से दें, फिर स्कूल, वो सारी चीजें। यहाँ पे मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर जो है सिविल सोसाइटी किस तरह से सपोर्ट कर सकती है एथिकल कोड्स को? अगर हम इस तरह की कोर्स बना लेते हैं, इस तरह की टास्क फोर्स बना लेते हैं, तो सिविल सोसाइटी का क्या किरदार होगा, वो किस तरह से सपोर्ट करे? मुझे ये लगता है कि हर इंडिविजुअल इंसान को आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि ये मेरा कंट्री है, ये मेरा घर है, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैंने फुलफिल करना है। जब तक मैं अपने आप के लिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा, कोई दूसरा नहीं लेगा। जब तक मैं खुद को चेंज नहीं करूंगा, दूसरा नहीं करेगा। तो मैं क्या करता हूं, अपने आप से कमिटमेंट करता हूं कि मैं अपने आप को लेके ये जो मैं कर सकता हूं, जो मेरी कैपेसिटी है, जो मेरा टैलेंट है, जो मेरी स्किल है, मैं इस कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए वो सर्व करूंगा अपने से। ठीक है। हाँ, जब मुझे लोग देखेंगे, मुझे ऑब्जर्व करेंगे, डेफिनेटली वो भी चेंज होना शुरू। लेकिन मैं खुद को चेंज किए बिना दूसरों को चेंज करने की कोशिश करूंगा तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर अहमद रजा हमारे साथ मौजूद थे। अहमद रजा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, एथिकल कोड्स की जरूरत तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा
ہمیں اپنے ایتھکس پر فوکس کرنا بہت ضروری ہے. ہمیں اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بہتر بنانا ضروری ہے, لسننگ سکلز کو بہتر کرنا ضروری ہے, اپنے معاملات خود سے دوسروں کے ساتھ پیار محبت تحمل کے ساتھ جو ہے ان کو سورٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے. ٹریفک قوانین کی بھی پاسداری کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی سوسائٹی, اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھیں. ناظرین, یہاں وقت ہے مختصر سے وقفے کا. وقفے کے بعد حاضر ہوں گے.